Everyone, in this video I am going to do an assignment of the chapter compound interest comprising of all the important questions of the chapter. So let's start with question number 1. Parne borrowed rupees 64,000 from a bank to learn a skill. परने ने 64,000 रुपीज बैंक से उधार लिए ताकि वो कोई स्किल लर्न कर सके. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25 पैसे पर 10 रुपी पर एनम. यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल सीधे तौर पे नहीं दिया गया है, ये आपको परसेंटेज में फाइंड आउट करना पड़ेगा. इसमें दिया है कि 25 पैसे पर 10 रुपीज पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. सो कैलकुलेट द अमाउंट पेड बाय हिम आफ्टर 2 years टू क्लियर हिज डेप्ट. तो आपने क्या करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है जो कि वो पे करेगा 2 years के बाद, ताकि जो उसने वहां बैंक से पैसे उधार लिए थे उसको पे ऑफ कर सके, उस कर्जे को उतार सके. तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन. दिस इज सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट व्हाट वी आर गिवन प्रिंसिपल. सो आई हैव रिटन हियर प्रिंसिपल and the symbol with which principal is denoted, that is P, right? So how much is the principal? Rupees 64,000. The next is a rate of interest. Rate of interest, it is denoted by the symbol R and it is given what? 25 paise per rupees 10 per 10 rupees, right? Now we are to convert it into percentage per annum. So how we will convert? See here in the rough work, rupees 10 में से he has told that 25 पैसे, तो 25 पैसे को रुपी में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा? 25 अपॉन 100, राइट? और 25 अपॉन 100 को कटिंग करें तो रुपी 1/4 आता है. मीन्स 10 रुपीज में से रुपी 1/4. तो 1 रुपी में से क्या होगा? रुपी 1/4 and this 10 will be multiplied. So this will become rupee 10/4. So here we can write 10/4% per annum, and it can be cancelled also. 2 5s are 10, 2 2s are 4. This is 5/2% per annum, right? And now time given is n, that is equal to 2 years. Now you are to find amount and symbol is A. So here we will apply the formula P into 1 plus R upon 100 power n, right? So here rupee P is 64,000 into 1 plus R 5/2 into 100, bracket close, power is 2. 5 1s are 5, 5 2s are 10, and this is 0. So it is rupees 64,000 into 1 plus 1 by 20 into 2 is 40 and power is 2. So rupees 64,000 into 40 1s are 40 plus 1 is 41/40 power 2, right? तो rupees 64,000 into 41/40 into 41/40, क्योंकि पावर 2 थी तो आपने 41/40 कितनी बार लिख दिया? 2 बार. 0 0 0 and 0. 4 1s are 4, 4 1s are 4, 2 6, 4 6 are 24, 0. 4 1s are 4 4s are 16 and 0. तो आप क्या करेंगे?
41 और 41 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और जो आए उसको 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ₹67,240. Right? So this is the amount that he will pay after 2 years to clear the debt, जो कि पैसा उसने बैंक से लिया था. अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल बी ₹3200 अमाउंट टू ₹3872 इन 2 years. आपको यहां क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट. और पूछा है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ये वाला अमाउंट जो है वो इतना बन जाता है 2 years में. तो इसको प्रिंसिपल बोलेंगे, इसको अमाउंट बोलेंगे और ये 2 years क्या है? टाइम है. तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 2 पूछा कि आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप उसको एज्यूम कर लो. लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट that is equal to R% per annum. कितना हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट? दैट इज इक्वल टू R% per annum. नाउ प्रिंसिपल here will be denoted by P. तो कितना लेंगे प्रिंसिपल? ₹3,200. All right. Then next is amount. So that is A and it is equal to ₹3,872. What more is given to you? You are given time N and that is given equal to 2 years. So amount is equal to P into 1 plus R over 100, power is N. All right. So amount कितना है? 3872 is equal to principal is 3200 into 1 plus R upon 100 and N time is how much? 2. तो आगे करेंगे 3872 divided by 3200. It is equal to 1 plus R upon 100 and power is 2. अब जो भी कैंसिलेशन है वो आप करेंगे. 2 1s are 2, 2 6 are 12, 0 0. 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 3s are 6 and 1 2 6 are 12. 4 से करो कटिंग. 4 4s are 16, 0 0. 4 4s are 16, 3 4 8s are 32, 1 4 4s are. Now with 4 4 1s are 0 0. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 1s are. तो ये सारी कैंसिलेशन हो चुकी. So you have got 121 upon 100 is equal to 1 plus R upon 100 power is 2. अब आप सोचो कि यहां पावर 2 है तो किस नंबर की पावर 2 करें कि ये बन जाए. तो आपको पता है 11 इंटू 11 121 होता है. आप इसको 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर कर दो. ऑल राइट. एंड इट इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर इज 2. अब जब आप इसको कंपेयर करते हो तो आपको क्या लग रहा है? पावर्स क्या है? सेम है. तो बेसिस को क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे. डायरेक्ट लिख सकते हो आप बिना लाइन लिखे. देयरफॉर 1 प्लस R upon 100 is equal to 11 upon 10. Now from here R upon 100 is equal to 11 upon 10. प्लस का 1 राइट में जाएगा, माइनस का 1 बनेगा. राइट. सो R upon 100 is equal to LCM is what? 10. 10 divided by 10, 1 into 11 is 11. Minus 10 ones are 10. So this is 1 upon
10। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आर, ये 100 जो है वो 1/10 को मल्टीप्लाई कर देगा, 1/10 इंटू 100, जीरो कैंसल्स, जीरो, सो दिस इज 10% पर एनम, 10% पर एनम। तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा गया था, देयर फोर रेट ऑफ इंटरेस्ट, rate of interest R is equal to 10% पर एनम, राइट। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 16,000 on rupees 18,000 for 2 and 1/2 years at 10% interest per annum compounded annually, right? So this is the principal, this is the time, and this is the rate of interest, and everything is annually. So let's start doing the solution of this question. Question number 3. Here what we are given initially, we are given here principal P rupees 18,000. All right, then you are given a rate that is 10% per annum, then you are given time n, 2 and 1/2 years. So it is 2 2s are 4 and 1 5, 5/2 years. Now what we have to find out? We have to find out here in this question amount as well as compound interest. So amount is equal to P into 1 plus R upon 100 power n, right? So P is how much? 18,000. 1 plus R 10 upon 100, power is n, that is 5/2 years. 5/2 years. Now these 5/2 years are 2 and 1/2 years, means 2 full years and 1 half year. Since you cannot take here this 2 and 1/2 means 2.5 years, so you cannot write here 2 and 1/2 or 2.5. here you will take first n as 2 years. आप क्या करोगे, यहां आप n पहले क्या लेंगे, 2 years initially, so here you will write 2. now let's calculate rupees 18,000 into 0 0 cancel, this is 10 ones are 10 plus 1 11 upon 10 power 2, right? So this is rupees 18,000 into 11 by 10 into 11 by 10, 0 0 1 2. This is now multiplication. 180 multiplied 11 into 11 is 121. So if you multiply you will get 21,780. तो ये अमाउंट जो है वो हमें कब मिलेगा, एट द एंड ऑफ 2 years. तो मैं यहां लिखूंगा अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 years. अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कर देते हैं. दिस अमाउंट विल बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. हाउ मच, रुपीज 21,780. अब अमाउंट मेरे पास ये है, प्रिंसिपल मेरे पास ये है, तो अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट विच इज रिसीव्ड आफ्टर 2 years. सो देयरफॉर interest received at the end of amount, interest received at the
एंड ऑफ सेकेंड ईयर, वो इंटरेस्ट जो कि मुझे सेकेंड ईयर के एंड में मिलेगा क्या होगा, वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो व्हाट इज अमाउंट, ₹21,780 minus what is the principal in the beginning, 18,000. तो अब आप 21,780 में से 18,000 माइनस करेंगे, यू विल गेट ₹3,780. ये तो 2 सालों के एंड में मिलने वाला इंटरेस्ट था, लेकिन 2 इयर्स तो कंप्लीट ले लिए, आधा साल तो फिर रहा, हाफ ईयर, उसका भी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. So we will write interest received after half year. तो क्या फॉर्मूला लगेगा, P इंटू आर इंटू टी, या टी की जगह एन लिख लो, अपॉन 100. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल हियर? Now principal here will be 21,780. This one जो अमाउंट हमें सेकेंड ईयर के एंड में मिला, वो थर्ड ईयर का जो है वो सेकेंड ईयर के एंड का अमाउंट जो है वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बनेगा. तो यहां थर्ड ईयर स्टार्ट हो चुका है, तो ₹21,780. और रेट क्या था, 10% था, तो 10/100. और टाइम कितना है, टाइम इज 1/2, तो 1 यहां आएगा और 2 यहां आएगा. 0 कैंसल 0, दिस 0 कैंसल 0, 2 1s are 2, 2 1s are 2, डबल डिजिट, सो 0, 2 8s are 16, 1, दिस ₹1089. ये इंटरेस्ट जो है वो हमें आधे साल का मिलेगा, दैट इज हाफ ईयर का. देयरफॉर क्या पूछा उसने क्वेश्चन में, फाइंड द इंटरेस्ट. सो देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 and 1/2 years, कितना होगा टोटल इंटरेस्ट, ₹3780 में ऐड करेंगे क्या, 1089, दोनों ही इंटरेस्ट को आप ऐड कर दोगे. सो दिस इज ₹98816 and 8 and 3 and 1 is 4, 4,869 will be the interest received after 2 and 1/2 years. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 1,60,000 3 years ago. एक टाउन की पॉपुलेशन जो थी वो 3 years पहले कितनी थी, 1,60,000. इट इंक्रीज्ड बाय 3%, 2.5% एंड 5% इन द लास्ट 3 years. पिछले 3 सालों में कितनी इंक्रीज की, पहले साल में 3%, दूसरे में 2.5% और तीसरे साल में 5%. So find its present population. We need to find the present population of the town. So this is question number 4. First, it is population of the town 3 years ago. It is given. So here I am writing population of town 3 years ago. Population of town 3 years ago, it is 1,60,000, 1,60,000. 1,60,000 जो थी वो 3 years before population थी, right? So rate of increase of population, rate of increase of population in 3 years is, 3 सालों में जो पॉपुलेशन इंक्रीज की उसको हम R1, R2 और R3 से डिनोट कर देते हैं.
So R1 here is 3%. R2 I am taking 2.5% and R3 I am taking as 5%. Right? So what we are to find out, therefore present population of the town, present population of the town. So it will be equal to 3 years ago population, that is 1,60,000 into 1 plus R1, that is 3 upon 100 into 1 plus 2.5 upon 100, because it is increasing, so we are doing plus 1 plus 5 upon 100. अब इसको सॉल्व करेंगे. रुपीज 160,000 into 100 ones are 100 plus 3, 103 upon 100, right? Into this is 100 ones are 100 plus 2.5, 102.5 upon 100 into 100 ones are 100 plus 5, 105 upon 100. जो भी कैंसिलेशन है वो कर देते हैं. दिस इज 1 2 1 2 1 2 1 2. So this cancellation we have done. Now it is equal to, यहां भी करते हैं, 5 2s are 10 0, 5 2s are 10, 5 1s are 5. अब यहां कैंसिलेशन 4 5s are 20, 4 4s are 16. 5 से इसकी कर देंगे, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 का टेबल 2 तक, 5 zeros are 0.25. दिस इज, तो क्या बचा आपके पास? This is not rupees, it is population, so it is 4 multiplied by 103 into 20.5 into 21. अब आप इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके जो सम आएगा दैट विल बी योर आंसर. तो आप इसको रफली मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आंसर आएगा 1,7,366. 1 stands 100, 1,77,366. राइट? सिंपल स्टेप्स में कैलकुलेशन कर लो. 103 को 4 से, और जो आया उसको 205 से, और जो आया उसको 21 से, और एक डिजिट बैक आप डेसिमल लगा देंगे. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा. अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5. The difference between simple interest and compound interest on a certain sum of money for 2 years at 4% per annum is ₹20. Find the sum. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 5. लेट सम इट इज इक्वल टू P. सम क्या लिया? सम यानी प्रिंसिपल कितना लिया आपने? P. राइट? सो रेट of interest is 4% per annum, right? Then time is given n, that is 2 years. Now the difference between simple interest and compound interest, तो compound interest बड़ा होता है, तो आप लिखेंगे CI minus SI. कितना डिफरेंस दिया दोनों का? 20 रुपीज, ₹20. अब आप फॉर्मूला लगाओ और वैल्यूज पुट करो. इट इम्प्लाइज P प्रिंसिपल स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर इज N माइनस 1. ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला. माइनस सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू R इंटू, कई जगह T लिखते हैं आप, N लिख लो टाइम को, अपॉन 100, एंड इट इज इक्वल टू व्हाट? 20. So it implies P will remain P only, square bracket,
1 plus r is 4 upon 100, power n means 2 minus 1, minus p into r is 4 time is 2 upon 100 is equal to 20. All right. So it implies 4 ones are 4 and 25 here with cancellation. So p square bracket 1 plus 1 upon 25 power 2 minus 1 square bracket close. 4 ones are and this is 25. तो ये बना minus 2p upon 25 is equal to 20. Right? अब p square bracket 25 ones are 25 plus 1 is 26 upon 25 power 2 minus 1 minus 2p upon 25 is equal to 20. अब इट इम्प्लाइज, अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. तो p और स्क्वायर ब्रैकेट वैसे की वैसे ही 26 को 26 से मल्टीप्लाई करना है. तो 26 को जब आप 26 से करोगे तो 676 आ गया. 25 25 आर 625 minus 1 minus 2p upon 25 is equal to 20. Right? So p square bracket 625 is the LCM. 625 divided by 625 1, so 676 minus 625 into 1 is 625 square bracket close minus 2p upon 25 is equal to 20. Right? फर्दर सॉल्व करो इसको. 676 में से आप 625 माइनस कर दो, आपके पास 51 आएगा. वो 51 इस p को मल्टीप्लाई करेगा. 51p अपॉन 625 माइनस 2p अपॉन 25 इज इक्वल टू 20. राइट? अब 625 और 25 का एलसीएम क्या आएगा? 625. तो 625 को 625 से डिवाइड करेंगे 1, सो 51p माइनस 625 डिवाइडेड बाय 25 इज 25. 25 2s are 50p is equal to 20. Right? So 51p में से 50p माइनस किए क्या आएगा? p अपॉन 625 इज इक्वल टू 20. राइट? तो यहां से आप p फाइंड आउट करो. इट इज रुपीज. ये 20 और 625 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो रुपीज 20 इंटू 625. तो आप 20 को 625 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा रुपीज 12,500. रुपीज 12,500. सो दिस इज द सम. Therefore, sum is equal to rupees 12,500. Right? सम में पूछा गया था इस क्वेश्चन में. Now, here the next question number is 6. The simple interest on a certain sum of money for 3 years at the rate of 5% per annum is rupees 600. What will be the compound interest on that sum at the same rate for the same time period if the interest is compounded annually? Right? हमें क्या फाइंड आउट करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है सेम सम के ऊपर और सेम टाइम पीरियड के लिए इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली. तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन. 6th क्वेश्चन सोल्यूशन. सो हियर time is how much? Time is given 3 years. n से डिनोट कर दो, that is equal to 3 years. Then you are given a rate of interest also, that is 5% per annum. 5% per annum.
then you are given simple interest. How much? It is rupees 600. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, दिस इज P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100, दैट इज इक्वल टू 600. तो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल इज नॉट गिवन. रेट कितना है? 5. टाइम कितना है? 3 अपॉन 100 इज इक्वल टू 600. अब आप इसमें कैंसिलेशन, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 0. तो 3p अपॉन 20 इज इक्वल टू 600, राइट. तो यहां से प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू 600 और ये 3 अपॉन 20 रेसिप्रोकेट हो जाएगा 20 अपॉन 3. 3 1 जार 3, 2 जार 6, 0 0. सो 2 2 जार 4 एंड 3 zeros. तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 4000. देयरफॉर P इज इक्वल टू रुपीज 4000. अब आपसे क्या पूछा गया है? व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट सम. उस सेम सम के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. तो P आपके पास आ गया. टाइम भी बोला सेम ही रहेगा, टाइम इज इक्वल टू 3 years और रेट भी सेम रहेगा 5% पर एनम. निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो. ये क्वेश्चन में क्या बोला गया? व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट सम. तो कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट भी निकाल सकते हो या फिर आप अमाउंट निकाल करके फाइंड आउट कर सकते हो. तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर डायरेक्ट निकालना है, सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, P स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर इज N माइनस 1, राइट. So how much is the principal? 4000. Square bracket 1 plus R is 5 upon 100 power N. कितनी है पावर N? 3 minus 1. 5 1s are, 5 2s are and 0. right? अब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे. तो कैलकुलेशन में सबसे पहले रुपीज 4000 into 21s are 20 and 121 upon 20 power is how much? 3 minus 1. रुपीज 4000. 21 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना आपने? 3 बार. तो 21 21s are 441 एंड 441 को फिर 21 से कर दो 9261 और 20 को 3 बार करेंगे तो 8000 आएगा माइनस 1. तो दिस इज रुपीज 4000. Here LCM is 8000. So 8000 divided by 8001, so 9261 minus 8001s are 8000. Square bracket close. So it is rupees 4000 into 9261 में से 8000 माइनस करेंगे 1621 अपॉन 8000. 4000 1s are, 4000 2s are. So rupees 1261 डिवाइडेड बाय 2. तो आप इसके पॉइंट्स कर दो. 2 का टेबल 12 तक, 2 6 are 12, 2 3s are 6. 2 का टेबल 1 तक नहीं होता, 0 लगेगा. और 2 का टेबल 10 तक, 2 5s are 10 और साथ में 0. 630 rupees and 50 paisa is the compound interest. So this was the solution of question number 6. Now we will proceed for question number 7. This is at what rate percent will a sum of rupees 10,000 amount to rupees 13,310 in 3 years if the interest is compounded annually. तो आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? रेट फाइंड आउट करना है. So let's start doing the solution. This is question number 7.
So here we are given principal that is equal to rupees 10,000, and this amount rupees 13310, and this is n, this is given 3 years, and rate is not given, so let rate of इंटरेस्ट, क्या अज्यूम करेंगे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को? R% पर एनम, इट इज R% पर एनम, राइट। अब स्टार्ट करते हैं कि A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। ये किसका फॉर्मूला है? अमाउंट का फॉर्मूला है, राइट। अब अमाउंट की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 13,310। इट इज इक्वल टू प्रिंसिपल की क्या है? 10,000 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर इज 3, राइट। सो 13,310 अपॉन 10,000 is equal to 1 plus R over 100 power 3. So here 1 0 cancel with 1 0. So we can write it 11 over 10 whole cube, because 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1331 आएगा, 10 को 3 बार करेंगे तो 1000 आएगा। इट इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 3। अब आप देखो पावर्स दोनों तरफ सेम है तो बेसिस को इक्वेट कर दो, देयरफॉर 1 प्लस R अपॉन 100 इज इक्वल टू 11 over 10। नाउ R upon 100 is equal to 11 upon 10 plus 1, shift to the right, minus 1. So here R over 100 is equal to 10 is the LCM, 11 will remain same, minus 10 ones are 10, that is 1 upon 10. So from here R is equal to, this 100 will multiply 1 upon 10, 1 upon 10 into 100, और रेट किस में आना है? परसेंट पर एनम में। सो 0 and 0 cancels, so rate will be equal to 10% पर एनम। कितना हो गया रेट? 10% पर एनम। तो आप यहां लिख भी देंगे देयरफॉर rate of interest R, that is equal to 10% पर एनम, राइट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज राजेश बॉट अ कार फॉर रुपीज 2,75,000। राजेश ने एक कार कितने की खरीदी? 2,75,000 की। If the insurance company calculates its premium, calculate taking the depreciation at the rate of 20% per annum। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया? उसका जो कैलकुलेट किया प्रीमियम, किस चीज को ध्यान में रखते हुए? डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, कि कार की वैल्यू जो है वो पर एनम एक साल में 20% जो है वो रिड्यूस हो गई। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर 2 years? तो कार की वैल्यू 2 years के बाद कितनी होगी? और उसके बाद आपने डेप्रिसिएशन अमाउंट भी निकालना है, जो कि कार का अमाउंट डेप्रिशिएट हो चुका। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज राजेश बॉट अ कार, मीन्स अमाउंट स्पेंट बाय राजेश, अमाउंट स्पेंट फॉर buying a car, amount spent for buying a car। अब कौन उसको खरीद रहा है? दैट इज इमटेरियल टू मेंशन, दैट इज इक्वल टू रुपीज 2,75,000। नाउ इंश्योरेंस कंपनी कैलकुलेट्स प्रीमियम टेकिंग द डेप्रिसिएशन, तो हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है, रेट ऑफ
डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन होता है उसके रेट में कमी, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, राइट। हाउ मच इज गिवन रेट ऑफ डेप्रीसिएशन? 20% per annum, right? So what will be the value of car after 2 years? Therefore value of car after 2 years, मतलब टाइम भी हमें दे रखा है 2 years, वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर 2 years, तो कितनी रहेगी? P इंटू 1 माइनस R अपॉन 100, पावर विल बी 2. So how much is P? 275,000, ये रुपीज में आएगा, इंटू 1 माइनस R इज 20 अपॉन 100, पावर इज 2. So 20 ones are 20, 25s are 100. So this is rupees 2,75,000 into 5 ones are 5 minus 1 is 4 over 5 power 2. So this is rupees 2,75,000 into 4 fours are 16 and 5 fives are 25. अब आप इसकी कैंसिलेशन कर दो, 5 fives are 25, 5 fives are 25, 2 5 fives are 25, 0 0 0, 5 ones are 5, 5 ones are 5, 5 ones are 0 0 0. So it is rupees 11,000 into 16. 11,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 16 से, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालो. दिस इज रुपीज 1,76,000. तो कार की वैल्यू जो है वो आफ्टर 2 years कितनी रह गई? 1,76,000. तो अब आप डेप्रीशिएशन भी निकालोगे कि कितनी डेप्रीशिएशन हुई. देयरफॉर डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगी? जो कार का ओरिजिनल रेट था वो कितना था, जो मतलब उसने अमाउंट स्पेंड किया, 2,75,000, उसमें से ये डेप्रीशिएटेड अमाउंट आप माइनस करो कि कार के रेट में कितनी डेप्रीशिएशन आई, यानी 1,76,000 आपको करना है माइनस, राइट. सो 2,75,000 में से आपने क्या माइनस करना है? 1,76,000. तो 99,000 की कार के रेट में जो है वो डेप्रीशिएशन आई, कमी आई, यानी इतना उसका रेट जो है वो कम हुआ, राइट. तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन 8th का. अब करते हैं 9th क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन क्या है? A certain amount amounts to rupees 12,167 in 3 years at 15% per annum compounded annually. Find the sum. ये आपकी डीएवी की बुक में एक एग्जाम्पल है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 9. कई बार ये बोर्ड के पेपर्स में आ भी चुका है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. हमें इस क्वेश्चन में सम निकालना है, तो आपको सम जो है वो नेचुरली एज्यूम करना पड़ेगा. लेट सम इज इक्वल टू पी, राइट. तो उसने लिखा है अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू रुपीज दिस. एक तो टाइम दे रखा है एन, हाउ मच? 3 years, राइट. और एक रेट दे रखा है उसने 15% पर एनम, एंड अमाउंट हाउ मच इज गिवन? रुपीज 12,167. स्टार्ट करते हैं. अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, पावर N is equal to 12,167. So we are not given P, so P as it is. 1 plus R is 15 upon 100, power is 3, and it is equal to 12,167.
सो P इंटू 1 प्लस कटिंग करेंगे इसकी 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, 0, 1 प्लस 3 अपॉन 20 पावर 3 and it is 1 2 1 6 7. So it is P. Then 20 ones are 20 plus 3 is 23 upon 20 power 3. It is 1 2 1 6 7. So P into 23 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स. सो 23 इंटू 23 इंटू 23, राइट? तो चेक करो 23 इंटू 23 कितना हुआ? 529. सो 23 इंटू 23 आप पहले करेंगे और 529 आने के बाद उसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,167 आएगा. अपॉन 20 को 3 टाइम्स करेंगे 8,000 आएगा. इट इज 12,167. अब P इट इज इक्वल टू 12,167 एज इट इज, और ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा 8,000 अपॉन 12,167. this and this cancel, so P is equal to rupees 8,000. So we have got the sum or principal as 8,000. Therefore sum is equal to rupees 8,000. ये था क्वेश्चन नंबर 9. अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10. तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 20,000 फॉर 6 months इफ द इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. तो ये क्वार्टरली का क्वेश्चन है. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 10. हियर प्रिंसिपल P इट इज इक्वल टू रुपीज 24,000, right? Then रेट 8% पर एनम, लेकिन हमें रेट क्वार्टरली की बात की गई है. तो जब भी क्वार्टरली हो तो इसको रेट को 4 से डिवाइड करते हैं. 8/4% पर क्वार्टर, क्योंकि एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं? टोटल ईयर में 12 मंथ्स हैं, राइट? सो आप इसको 4 से डिवाइड करो. दिस इज 4 2 जार 8. 2% पर क्वार्टर बना. 2% पर क्वार्टर. अब n टाइम आपको दिया 6 मंथ्स. अब 6 मंथ्स में आपको पता है 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, तो डायरेक्ट आप 2 क्वार्टर्स भी लिख सकते हो. अदरवाइज प्रोसीजर क्या है? आप इसको ईयर्स में कन्वर्ट करो. तो 6/12 ईयर्स बना. अब क्वार्टर में कन्वर्ट करने के लिए जो आपके पास ईयर्स आए उसको 4 से मल्टीप्लाई करो. सो 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि रेट को आप 4 से डिवाइड करते हो, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करोगे. 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 3 1 जार 2 जार 2 क्वार्टर्स. अगर आप 6 मंथ्स को 2 क्वार्टर्स डायरेक्ट भी लिख सकते हो, राइट? तो कहीं गलत नहीं होगा वो भी. दिस इज n एज 2 क्वार्टर्स. निकालना क्या आपने? कंपाउंड इंटरेस्ट. फॉर्मूला लगा दो. प्रिंसिपल स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 पावर इज n minus 1. So this is P rupees 24,000 square bracket 1 plus 2 upon 100 power n means 2 minus 1. 2 1s are 2, 2 5s are 10 and 0. So this is rupees 24,000. 50 1s are 50 plus 1 51 upon 50 power is 2 minus 1. तो इसको आगे करेंगे रुपीज 24,000
51 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम्स. सो 51 into 51, that is 2601 upon 2500 minus 1. So this is rupees 24,000. This is LCM 2500. तो यहाँ आएगा 2601 माइनस 2500 into 1, 2500. So this is rupees 24,000 into 2601 में से आपने माइनस करना है 2500, राइट. 2601 minus 2500, it gives 101 upon 2500. This 00 cancel with this 00, right? 5 5s are 25, 5 4s are 20, 4 5 8s are 40. अब आपके पास कोई कैंसलेशन नहीं होगी, तो आप क्या करो, 101 को मल्टीप्लाई कर दो 48 के साथ. दिस इज 4848 divided by 5. Now by long division you may divide. और एक और इजी तरीका है कि आप 4848 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी कर दो. ऐसा क्यों? पॉइंट लगाना इजी है. तो 4848 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 9696 डिवाइडेड बाय 10. अब ये देखो डेसिमल प्लेस करना कितना इजी हो गया. रुपीज डेसिमल एक डिजिट पीछे लगेगा 969.6 और यहाँ 0. अगर ऐसा ना करना हो तो आप 4848 को 5 से डिवाइड कर लो, तब भी आपको आंसर जो है वो सेम ही मिलेगा, राइट. तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 असाइनमेंट का. अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11, द डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी for 3 years at the rate of 10% per annum is rupees 93. So find the sum. So sum means principal. So let's start doing the solution of the question. Question number 11's solution. Here we need to find the sum. So we will write let sum is equal to P. N means time. This is given 3 years and a rate of interest that is given 10% per annum. तो क्या दे रखा है आपको? द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इज रुपीज 93. तो आप लिखेंगे CI माइनस SI इज इक्वल टू रुपीज 93, राइट. सो इट इम्प्लाइज CI का फॉर्मूला P स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N माइनस 1. दिस इज फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू N अपॉन 100. इट इज इक्वल टू 93. नाउ नो नीड टू राइट द रुपीज. सो इट इम्प्लाइज P स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस 10 अपॉन 100 पावर N मीन्स 3 माइनस 1 square bracket close minus P into R is 10, N is 3 upon 100 is equal to 93. 0 cancels with 0. So P square bracket 10 ones are 10 plus 1 is 11 upon 10 power 3 minus 1.
minus 0 cancels with 0. So this is 3p upon 10 is equal to 93. So this implies p 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1331 अपॉन 10 को 3 बार करेंगे 1000 माइनस 1 माइनस 3p अपॉन 10 is equal to 93. So p square bracket LCM is 1000. So this 1000 divided by 1000 is 1 and 1 into 1331 is 1331 minus 1000 ones are 1000 minus 3p upon 10 is equal to 93. So p into 331 minus 1000 is 331 upon 1000 minus 3p upon 10 is equal to 93. So here LCM will be 1000. 1000 divided by 1000 is 1. 1 into 331p. 331p minus 1000 divided by 10 is 100. 100 into 3. 300p. It is equal to 93. So further 331 में से 300 माइनस कर दो कितना आएगा 31p अपॉन 1000 is equal to 93. So it implies p is equal to 93 and this will be reciprocated 1000 upon 31. 31 ones are 31 threes are. So 1000 into 3 is 3000. So this is the principal or sum. Therefore sum is equal to rupees 3000. Sum is equal to rupees 3000. Now we will do question number 12. So see question number 12. Mohan purchased a building at rupees 2,75,000 and its value depreciates at the rate of 10% per annum. What will be its value after 3 years? So let's start doing the solution of this question. This is price of building. Price of building, or you can say the rate at which the building was purchased. So price of building is equal to rupees 2,75,000. Now there is given a rate of depreciation. So here a rate of depreciation. So rate of depreciation will be denoted by R. How much it is? 10% per annum. Right? Now time N, this is equal to 3 years. So we will find therefore value of building after 3 years. Value of building after 3 years. So it is equal to rupees 2,75,000 into 1 minus 10 over 100, क्योंकि ये होता है 1 minus r over 100 and power is what? 3. So 0 cancels with 0. So it is equal to rupees 2,75,000 into 10 ones are 10 minus 1 is 9. So 9 over 10 power 3. So it is rupees 2,75,000 into 729 upon 1000. So 1000 and 1000 cancelled. Rupees 729 will be multiplied by
275. So that will be rupees 2,00475. 2,475. 1 stands 100, 1,000, 10,000, lakh. So 2,475. This will be the value of the building after depreciation of 10% per annum. अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13. In what time will rupees 3,750 at 20% per annum compounded annually amount to rupees 6,480? So let's do the solution of this question. So the question which we did previously, that was question number 12. The question which we are going to do now, that is question number 13. So here is the solution of question number 13. So principal is rupees 3,750, right, and amount that is equal to rupees 6,480, and rate is given 20% per annum. Time is not given, so let time is equal to n years. Time is equal to n years. Now we know that amount is equal to principal into 1 plus r upon 100 power is n. This formula we know already. So amount is 6,480 and principal is 3,750 into 1 plus 20 upon 100 and power n this way. So 21s are 20, 25s are 100. So this is 6,480 and this 3,750 will come in the denominator. It is equal to 1 plus 1 upon 5 power is n. So cancellation here 0, 0. 5 1s are 5 6 are 30, 5 7s are 35, 7, and 2 5 5s are 25. Here 5 1s are here with table of 5. The cancellation will not be done. So 7 plus 5 12 plus 3 15. So let's do cancellation with 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 5s are 15. 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 6 are 18. So with the table of 3 the cancellation will be done. So 216 upon 125 is equal to 5 1s are 5 plus 1 is 6. So it will be 6 upon 5 power n. अब आप ये देखो 6 upon 5 आपके पास इस तरफ है, इसको भी हम 6 upon 5 जैसा बेस बनाएं तो आप इसको 6 upon 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिकॉज 6 is multiplied 3 times 216, 5 is multiplied 3 times 125. So it is equal to 6 over 5 power n. अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बेसिस जो है वो दोनों तरफ सेम है, तो आप पावर्स को इक्वेट कर दो. देयरफॉर n is equal to 3. So therefore time is equal to 3 years. टाइम कितना हो गया? 3 years. तो ये आपका आंसर है. अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? एट व्हाट रेट परसेंट विल सम ऑफ रुपीज 64,000 amount to rupees 68,921 in 3 years compounded annually. तो यहां भी आपको रेट फाइंड आउट करना है. इसमें आपको प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा है. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द सॉल्यूशन. दिस इज 14 नंबर सॉल्यूशन. प्रिंसिपल P, it is equal to rupees 64,000. And then amount, it is equal to rupees
68,921. Then n means time, that is equal to 3 years, right? So A is equal to P into 1 plus R upon 100 पावर n. यहाँ एक लाइन और एज्यूम करनी है आपने, लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू R% पर एनम, राइट, R% पर एनम. सो अमाउंट फिल कर दो आप यहाँ 68,921. प्रिंसिपल की वैल्यू 64,000 इंटू 1 प्लस R, R तो R ही रहेगा, अपॉन 100 पावर इज n, that is 3. So 68,921 upon 64,000 is equal to 1 plus R upon 100 power 3. अब 68,921 जो है वो 64,000 से कैंसिल नहीं होता. तो अब आपको क्या करना है, यहां इस पावर 3 को देखकर सोचना है कि ये नंबर भी किसी नंबर की पावर 3 होगा. तो आपको ये याद रखना है 41 का क्यूब जो है वो ये होता है और 40 का क्यूब ये होता है. तो 41 अपॉन 40 का क्यूब होल क्यूब इट इज इक्वल टू 1 प्लस R ओवर 100 पावर 3. अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं दोनों तरफ जो है वो क्यूब क्यूब आ रहा है, तो पावर्स आर सेम, देयरफॉर बेसिस आर टू बी इक्वेटेड, देयरफॉर 1 प्लस R अपॉन 100 इज इक्वल टू 41 अपॉन 40. तो यहां से R अपॉन 100 फाइंड आउट करेंगे. 41 अपॉन 40, जो प्लस 1 है वो राइट में जाकर के -1 बनेगा, राइट. तो यहां से R अपॉन 100 इज इक्वल टू LCM इज 40. 40 डिवाइडेड बाय 40 इज 1, सो हियर इज 41 माइनस 41 आर 40 एंड इट इज 1 अपॉन 40. ऑल राइट. तो यहां से R इज इक्वल टू 1 upon 40. This 100 will multiply other side. 2 2s are 4, 2 5s are 10. So R is equal to 5 upon 2% per annum. Therefore, a rate of interest that is R, it is 5 upon 2% per annum. तो आप इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दो. 2 2s are 4, 1 2 5s are 10, 2.5% per annum, 2.5% per annum. Now next question is question number 15. Question number 15 क्या है? A new car costs rupees 3,60,000. कितनी कॉस्ट है उसकी? 3,60,000. And its price depreciates at the rate of 10% per annum during the first 2 years and at the rate of 20% a year thereafter. पहले 2 सालों में जो है वो रेट जो है वो एक में भी 10% डेप्रिशिएट होता है, दूसरे में भी 10% और तीसरे साल में 20%. So what will be the price of the car after 3 years? तो करते हैं इसका solution of this question number 15. So question was a new car costs rupees 3,60,000. So initial price of the car, initial price of the car. How much was the initial price of the car? It was rupees 3,60,000. Now there is some depreciation.
In the first 2 years, in the first year also 10% depreciation, in the second year also some depreciation. Now we will write value of the car, value of the car in first year, value of the car in first year, it is equal to its original price, that is rupees 3,60,000 माइनस, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेप्रीशिएशन है, कितनी है 10% ऑफ रुपीज 3,60,000, 10% of rupees 3,60,000. So this is rupees 3,60,000 minus 10 upon 100 of means multiply 360,123 zeros. So 2 zeros cancel with 2 zeros. So this is rupees 3,60,000 minus 3,600 into 10, 36 and 1 2 3 zeros. So this whole we can take in the bracket, 3,60,000 minus 36,000. तो आप इसको माइनस करेंगे, you will get rupees 3,24,000. This is the value of the car in the first year. अब हम निकालेंगे value of the car in the second year. So value of the car in the second year, value of the car in the second year. How we will find this value? In the beginning of the first year, in the end of the first year after depreciation, the value is rupees 3,24,000. अब इस रेट में भी डेप्रीशिएशन हुई, कितनी 10%, वो 10% किसका होगा, इसका 10% ऑफ रुपीज 3,24,000. Now we will solve it. Rupees 3,24,000 minus 10 upon 100 into 3,24,000. So here 2 zeros will cancel with 2 zeros. Rupees 3,24,000 minus 32400, this is 32,400. ये ब्रैकेट में लिखेंगे. So both will be subtracted. 3,24,000 में से 32,400 subtract करेंगे. It will be rupees 2,91,600. This is the value of the car in the second year. अब हम निकालेंगे value of the car in third year, value of car in third year. How we will find this? Rupees 2,91,600 में से क्या माइनस करेंगे, थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन है 20%. सो 20% ऑफ रुपीज 2,91,600. अब आप इसको सॉल्व करो. सो रुपीज 2,91,600 माइनस 20 upon 100 into 291,600. So these two zeros will cancel with these two zeros. So it is rupees 2,91,600 minus, so 2,916 in the rough work multiplied by 2. This is 5832, 5832 और जीरोस देखो सिर्फ एक है. 58,320 इसमें से माइनस करेंगे. सो वी विल गेट रुपीज 2,33,280. So this is the value of the car in the
थर्ड ईयर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन। अब करेंगे हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो असाइनमेंट का जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है इसको स्लो स्लो रीड करेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। आशा इन्वेस्ट्स ₹8,000 एट अ सर्टेन रेट। कितना पैसा इन्वेस्ट किया उसने? 8,000 रुपीज। और कितने ईयर्स के लिए किया? 3 ईयर्स के लिए, कंपाउंडेड एनुअली, राइट। शी फाइंड्स एट द एंड ऑफ अ ईयर, उसको क्या लगता है कि जब भी ईयर एंड होता है एंड एट द एंड ऑफ 1 ईयर इट अमाउंट्स टू ₹9200। वो 8,000 रुपीज जो है वो कितने बन जाते हैं? 9200। सो ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, दूसरा इंटरेस्ट इन अकर्ड इन द सेकेंड ईयर, तीसरा अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, then in what time will ₹8,000 amount to ₹8820 at 5% per annum compounded annually। और एक क्वेश्चन है, for a given rate of interest and time what is more profitable to the depositor। so let's do the solution of the question। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। सो ए पार्ट क्या है? दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आशा ने पैसे इन्वेस्ट कितने किए थे? 8,000, राइट। एंड शी फाइंड्स दैट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर और 1 ईयर इट अमाउंट्स टू ₹9200। तो जो अमाउंट 9200 बना वो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बना, तो वो सेकेंड ईयर का क्या बनेगा? प्रिंसिपल, राइट। तो दिस इज द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल एंड इट इज अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो ये 3 ईयर्स हैं और दिस इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर विच इज इक्वल टू द प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड ईयर। तो आप क्या करेंगे? दिस 9200 इज अमाउंट एंड दिस इज प्रिंसिपल। टाइम जो है वो 3 ईयर्स नहीं होगा बल्कि 1 ईयर होगा। क्यों? क्योंकि 3 ईयर्स के जो टोटल टाइम है, 8,000 रुपीज जो इन्वेस्ट किए थे वो 3 ईयर्स में किए थे, लेकिन उसको फर्स्ट ईयर के एंड में 9200 रुपीज मिले। तो फर्स्ट ईयर के एंड में 9200 मिलना मीन्स वो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है और सेकेंड ईयर का क्या होगा? वो प्रिंसिपल होगा। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप क्या करेंगे? अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर करेंगे N। तो अमाउंट आपके पास 9200 है, ये हमें सेकेंड ईयर के एंड में मिला था। प्रिंसिपल जो है वो 8,000 है, 1 प्लस R हमें दे नहीं रखा अपॉन 100 और N की वैल्यू जो है वो 1 होगी, राइट। सो 9200 अपॉन 8,000 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100। पावर 1 को ना भी लिखो कोई बात नहीं, 2 zeros कैंसिल, 2 zeros। here is 2 4s are 8, 0, 2 4s are 8 and 1 9, 2 6 are 12, 2 2s are 4, 0, 2 2s are 4 and this is 2 3s are। तो 23 अपॉन 20 प्लस 1 को लेफ्ट में ले आओ, माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन 100, राइट। तो एलसीएम आएगा 20। सो 20 डिवाइडेड बाय 21, सो 23 माइनस 21 जार 20 इज इक्वल टू R अपॉन 100, राइट। तो R अपॉन 100 बनेगा 23 माइनस 23 अपॉन 20। सो वी विल फाइंड फ्रॉम हियर R 3 upon 20, this 100 will multiply here, 21s are 25s are 3 5s are 15% per annum। तो आप देख सकते हैं इसमें 15% जो है वो पार्ट नंबर 3 है इसका, राइट। तो यहां पर आप लिखोगे ऑप्शन 3 दैट इज 15%, राइट। नाउ बी पार्ट, इंटरेस्ट एक्यूर्ड इन द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। इसमें क्या लिखा है? शी फाइंड्स एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इट अमाउंट्स टू ₹9200। मींस ये जो सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट है ये क्या बन गया है? प्रिंसिपल। तो हम लिखेंगे
interest at the end of second year. Interest at the end of second year. ये कौन सा इंटरेस्ट होगा? सिंपल इंटरेस्ट. So this is principal into rate into time means n upon 100. So principal here is 9200 into rate 15 and time is 1 upon 100. Two zeros cancel with two zeros, so 92 into 15. 15 twos are 30, 3 is carry, 15 nines are 135 and 3 138. So it is rupees 1380. So this is option number 2. Option 2 in the assignment, rupees 1380. Right? Now there is C part. So C part is what? Amount at the end of third year. What we have to find out? Amount at the end of third year. तो सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट क्या था? वी विल राइट अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना बनेगा? दिस इज इन 1380 वी विल एड 9200. 9200 क्या था? प्रिंसिपल था, राइट? और इसमें ये इंटरेस्ट ऐड कर दिया. सो दिस इज द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. इट इज 10,580. इफ यू एड इट you will get 10,580. This is the amount which is received at the end of second year. Therefore, amount at the end of third year. Amount at the end of third year. अब ये जो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर था, ये थर्ड ईयर का क्या बनेगा? प्रिंसिपल बनेगा, राइट? तो हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल मीन्स रुपीज 10,580 इंटू 1 प्लस आर ओवर 100. सो 1 प्लस आर अपॉन 100. वट इज आर? आर इज 15 अपॉन 100, राइट? पावर तो 1 नहीं रहेगी, दैट इज 1 ईयर. सो दिस इज रुपीज 10,580. This is 5 threes are 5 twos are and this is 0. So this is 20 ones are 20 plus 3 is 23 upon 20. तो कैंसलेशन में 0 0 कैंसल. 2 ones are 2, 2 fives are 10, 2 twos are 4, 1 2 nines are. तो 529 into 23. So 3 nines are 27, 3 twos are 6, 8, 3 fives are 15, 2 nines are 18, 2 twos are 4 and 1 5, 2 fives are 10, 7, 8 8 16, 11, 2. This is rupees 12,167 rupees, right? And here this option is option number 1. Option 1 in the question. Now next is D part. तो डी पार्ट में क्या है? दिस इज इन व्हाट टाइम विल रुपीज 8,000 अमाउंट टू 8820 एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. टाइम निकालना है. सो दिस इज ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100. पावर इज एन. सो अमाउंट इज 8820 एंड इट इज इक्वल टू 8,000 into 1 plus 5 upon 100. N is not given, so N here. 5 ones are 5, 5 twos are 0. So this is 8820 upon 8,000. It is equal to
20 ones are 20 plus 1, 21 upon 20 power n. 0 cancel 0, 2 fours are 8, 0 0, 2 fours are 8, 2 fours are 8 and 2 ones are 2. 441 अपॉन 400 को 21 अपॉन 20 का स्क्वायर कर दो, इट इज 21 अपॉन 20 का पावर n. Bases are same, so n will be equal to 2. So therefore time 2 years. और ये इसमें ऑप्शन नंबर 2 है. दिस इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 2 years. 2 years. अब इसका क्वेश्चन लास्ट. फॉर अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम व्हाट इज मोर प्रॉफिटेबल टू द डिपॉजिटर. तो कौन सा प्रॉफिटेबल है? कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, बोथ आर इक्वली प्रॉफिटेबल और कैन नॉट बी डिटरमिन्ड. तो किस पर आप जो है वो डिपॉजिट करें तो वो प्रॉफिटेबल रहेगा? तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट के ऊपर, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर. सो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी आप पेमेंट जो है वो बैंक में डिपॉजिट करेंगे दैट विल बी मोर प्रॉफिटेबल. सो ई पार्ट ऑप्शन 1 compound interest, compound interest. So this was the solution of case study based question. So in this assignment I have done the solutions of all the questions given in the assignment, 15 questions along with case study based questions. Hope this assignment, solution of this assignment will be helpful for you. And if you have really understood the assignment, do like the video, comment also, and I will keep on posting more and more content related to class 8th. So to get the updates of more content posted, be tuned and do subscribe the channel. Thank you.